The lake Isle of Innisfree. Isle. You pronounce this word Isle as silent है इसमें, so you need to pronounce Isle. The Lake Isle of Innisfree is a poem which is written by William Butler Yeats. This poem is published in 1888. This is a lyric form. This is a lyric poem called music poem, and this poem also be describes about the childhood place of William Butler Yeats. Innisfree is a place, is a childhood place of William Butler Yeats, and in this poem William Butler Yeats finds peace. He wants to get peace in this poem. So this poem is also be written in 3 stanzas, like 3 quatrains, and all 3 also be having 4 lines. So 3 into 4, that was 12 lines in this poem, means 3 quatrains, called 3 stanzas of this in this poem. And he is William Butler Yeats. William Butler Yeats, who wants peace and who writes this poem, that was the Lake Isle of Innisfree, and he wants peace in this poem. He also describes about his childhood place, that was Innisfree. So this is the overview of the poem. The poem is about a person's desire and imagination to leave the city and go to a beautiful place in the country. ये जो पोएम है, ये एक पर्सन की डिज़ायर, मीन्स विलियम बटलर येट्स के डिज़ायर और उसकी इमेजिनेशन के बारे में बता रही है कि वो सिटी को छोड़ना चाहते हैं और वो पीसफुल प्लेस मीन्स इनिस्फ्री में जाकर रिलैक्स करना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू एस्केप द हार्शनेस ऑफ मॉडर्न लिविंग. ये जो मॉडर्न लिविंग है, जहाँ पर ग्रेट हसल बसल है, वो वहाँ से दूर हो जाना चाहते हैं. पर्सोना क्या है, जो पर्सन क्या सोचते हैं, पर्सोना का मीन्स पर्सन है. द पर्सन वॉन्ट्स टू गो टू ए स्मॉल आइलैंड. इसमें पर्सोना का मीन्स होता है पर्सन, तो डोंट नीड टू बी कन्फ्यूज. पर्सोना का मीन्स होता है पर्सन. जो पर्सन है वो स्मॉल आइलैंड में जाना चाहते हैं. इनिस्फ्री के मिडल ऑफ द लेक में है जो, और जिसको आप लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री कहते हैं. द पर्सोना वॉन्ट्स टू मीन्स द पर्सन वॉन्ट्स टू लिव बाई हिमसेल्फ इन ए पीसफुल प्लेस एंड ही विशेज टू बी क्लोज टू नेचर. पोइट इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं जो पीसफुल प्लेस है और वहाँ पर वो नेचर के नज़दीक रहना चाहते हैं. द पोएम इज़ अबाउट इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इंजॉइंग द पीस द कंट्री साइड कैन गिव इस. जो रूरल एरियाज़, जो नेचर आपको खुशी देती है, वही पीस, वही खुशी पोइट अब ढूंढना चाहते हैं. एंड दैट्स वाई पोइट वॉन्ट्स टू गो टू मच क्लोज टू द नेचर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फाइंड पीस. सो वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम? The poem is also be written in 3 stanzas. Each stanza has 4 lines. So 3 stanza also has 4 lines. Then 3 into 12, total 12 lines in this poem. And that also be called 3 quatrains, means 3 stanzas in this poem. So the rhyme scheme of this poem is A, B, A, B. A, B, A, B of the each stanza has rhyme scheme. This rhyme scheme creates a sense of harmony, और ये एक sense of harmony create करती है. It reflect the peace that the poet feels in the lake of Isle of Innisfree. ऐसा peace create करती है जो poet Innisfree में लेना चाहते हैं. So see, this is the picture. The poet also be describes about the Innisfree, that he wants to go to the Innisfree and find some relaxation there. He wants to live close to the nature. So this is the nature imagery here. So this is the poem, The Lake Isle of Innisfree. Innisfree is the name of the place. You can pronounce this word Isle. This well-known poem explore the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. ये जो poem है, ये poet की peace के बारे में है. Poet wants to find peace in this poem and he wants to go to his childhood place, that is Innisfree. And this poem is published in 1888. इस चीज़ को remind रखना. And this is a music lyric poem. एंड जो इनिस्फ्री एक प्लेस है, वहाँ पर पोइट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एज ए चाइल्डहुड बॉय. दिस पोएम इज़ ए लिरिक, मीन्स म्यूजिक पर बेस्ड. एंड द फर्स्ट, दिस इज़ द थर्ड 3 stanzas also have 4 lines, like total 12 lines in this poem is 3 quatrains. So what the poet said in this poem, the poet said in the first stanza, I will arise. मैं खड़ा होना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पर, इनिस्फ्री में. क्योंकि जो पोइट है वो टाउन में रहते हैं और टाउन में काफ़ी हसल बसल है और हसल बसल में उन्हें पीस नहीं मिल रहा. वो मॉडर्न वर्ल्ड से काफ़ी परेशान हो गए हैं. एंड यू वांट टू गो टू इनिस्फ्री एंड वांट सम पीस देयर एंड गेट सम पीस देयर. पोइट कहते हैं कि मैं इनिस्फ्री में जाकर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा. कैबिन मतलब अपना एक छोटा सा रूम बनाऊंगा इनिस्फ्री में जाकर लेक के किनारे, और वो रूम मैं वैटल और क्ले का बनाऊंगा. क्ले होता है चिकनी मिट्टी, वैटल मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ. दैट इज़ दिस आर द वैटल्स
इन्हें आप वैटल बोलते हो, जो लकड़ी की बनी होती हैं, जिनसे आप कैबिन और रूफ वगैरह, छत वगैरह घर की तैयार करते हो। ये एक तरीके से वैटल्स रहेंगे। तो पोइट कह रहे हैं कि मैं क्ले और वैटल का यूज़ करूँगा और बनाऊँगा, और वहाँ पर मैं 9 बीन रोज़ भी उगाऊँगा। एक फील्ड बनाऊँगा और वहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी 9 रोज़ फील्ड में बीन्स की उगाऊँगा। और वहाँ पर ना मैं ना एक छत्ता किस चीज़ का, हनी बी का एक छत्ता भी बनाऊँगा। ये देखिए, ये हनी बी का छत्ता बना हुआ है। ऐसे मैं बनाऊंगा ताकि मैं वहाँ पर जब भी अकेला बैठा हूँ, ग्लेड मतलब होता है ओपन स्पेस, अकेला बैठा हूँ ना, तो वहाँ पर ना जो साउंड आती है ना हनी बी की, मैं वो सुन सकूँ, मैं उसे इंजॉय कर सकूँ। तो सेकंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं तब मुझे वहाँ पर कुछ पीस मिलेगा। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। जो पीस ड्रॉप करके आएगा, ड्रॉपिंग मतलब बेटा धीरे धीरे आना। कैसे ड्रॉपिंग धीरे धीरे आता है? सेकंड लाइन में पोइट ये कह रहे हैं कि जिस तरह सुबह आप उठते हो और सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं आपको क्लॉथ की तरह आपके चारों तरफ लिपट जाती हैं, सेम वैसे मैं ये चाहता हूँ मॉर्निंग की तरह ये पीस भी मेरी चारों तरफ एक कपड़े की तरह मैं ओढ़ लूँ इनको। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और मैं वहाँ पर बैठ के, क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, उनकी आवाज़ सुनूँ, वो गाना गाएं तो। देयर मिड नाइट ऑल द ग्लिमर, पोइट कह रहे हैं मिड नाइट चमके, टिमटिमाए, ग्लिमर होता है टिमटिमाना, और नून में जो एनवायरनमेंट है वो पर्पल ग्लो कलर का हो जाए। और इवनिंग के टाइम पर सभी लिनेट विंग्स से एक तरीके से क्या करें, अपनी साउंड क्रिएट करें। लिनेट बर्ड होते हैं, ये देखिए मैं आपको लिनेट बर्ड की पिक्चर दिखाती हूँ। ये लिनेट बर्ड है। ये वाले बर्ड्स जब सिंग करेंगे ना तो मैं उनकी आवाज़ को आराम से बैठकर सुनूंगा। ये लिनेट बर्ड होते हैं जो सिंग करते हैं, ब्यूटीफुली सिंग करते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि मैं उनकी आवाज़ को सुनूंगा। पहले में तो पोइट कह रहे हैं कि मैं किसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, हनी बीज़ की। फिर पोइट कह रहे हैं कि मैं लिनेट्स विंग्स की भी, जो लिनेट की जो विंग्स होते हैं जब वो विंग फैलाएंगे और जो सिंग्स करेंगे तो मैं उनकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ। थर्ड स्टैंजा में पोइट ने फिर रिपीट किया, आई विल अराइज, मैं खड़ा हूँगा और चला जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, रात के लिए भी और सुबह के लिए भी। मैं अब यहाँ कंट्री साइड में ग्रेट हसल बसल में नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ के शोर शराबे से दूर जाना चाहता हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। अब थर्ड में पोइट किसकी साउंड सुनना चाहते हैं? थर्ड में पोइट साउंड सुनना चाहते हैं वाटर की, जो वाटर लेक में फ्लो होता है। पोइट कह रहे हैं कि जब भी मैं रोडवे पर खड़ा हूँगा ना, पेवमेंट्स होता है फुटपाथ या ग्रे फुटपाथ पर खड़ा हूँगा, तो मैं ना लेक से जो पानी आता है ना, जो लैप करता है, उछल कूद करता है, उसकी साउंड लेक के किनारे पर सुनना चाहता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हर्ट कोर, और मैं ये सभी साउंड मीन्स हनी बी की साउंड, लिनेट बर्ड्स की साउंड, क्रिकेट की साउंड, क्रिकेट इंसेक्ट्स की साउंड, और वाटर की साउंड, वाटर की लैपिंग की साउंड, ये सभी मेरे हर्ट के डीप कोर में, मतलब गहराई के कोने में आज भी जीवित हैं। इन सभी यादों को मैंने अपने लाइफ में उजागर कर रखा है, मैं इन सभी यादों को नहीं भूल सकता। सो दिस इज़ द पोएम written by William Butler Yeats, and this poem also be describes about the childhood point of view, and also be describes about his struggle for the peace.